standard. So, started studying. Okay. Let us begin with the first video of lesson number 2, that is globe longitude and latitude in geography. Okay, first lesson we finished, in which we studied about eclipse, then meteoroids, then stars, sun, planets, right? Remembered? So today we will start something to know more about Earth. आज हम अर्थ के बारे में कुछ जानते हैं. Okay. You know there are certain imaginary lines, क्योंकि पूरी अर्थ को हम easily study नहीं कर सकते. Understood? We cannot study Earth completely altogether. Okay, like you cannot study SS altogether. So SS is divided into 3 different topics: history, geography, and civics. Right? In that also you cannot go complete history at one time or complete civics at one time. So that is also divided in different lessons. Okay? In the same way, Earth को भी divide किया गया है longitude और latitude से. Okay, imaginary lines. So like if you have seen, इस तरह की lines बनी हुई है, right? These are imaginary lines. Okay, it is like from up to down and from side also. Yes or no? Okay, side से भी lines बनी हुई है. These two imaginary lines, which is up to down and side to side, that is longitude and latitude. Understood? Let us begin with the lesson. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature model, that is Earth का छोटा model है of the Earth. Okay, what is globe? That is miniature model of the Earth. Okay, then globe may be of varying size and type. One big one which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease, जो आसानी से कैरी कर सके एक जगह से दूसरी जगह. The globe is not fixed. It can be rotated at same way as the top spin or a potter's wheel is rotated. जिस तरह से पॉटर का व्हील या तो फिर एक वो टॉप होता है ना, दैट इज अ गेम टॉप, जिसको वो थ्रेड टाई करो और फिर वो थ्रेड एकदम से छोड़ो तो वो जस्ट घूमता रहेगा एकदम फास्ट. ओके, तो जो ग्लोब है, आई हैव जस्ट ड्रॉन लिटिल पिक्चर ओवर हेयर. तो ग्लोब है वो सी अर्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कनेक्टेड है. ओके, एंड बिटवीन जो ये ग्लोब है वो आप रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो. अंडरस्टूड? क्योंकि धरती वैसे भी ऐसे भी मूव हो रही है एंड इट इज मूविंग फ्रॉम सन ऑल्सो. सन के सराउंडिंग में भी मूव होती है. ओके, देन ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब में कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज एंड ओशंस कंप्लीटली करेक्ट साइज में शो किए गए हैं. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now, the question arises as to how to locate place on it. We need certain points of reference and lines to
find out the location of places. See, अब यहाँ पर this is globe. अब मैं यहाँ पर बोलूँगी चलो find where is India. It is very difficult to mark where is India. इसके लिए कुछ लाइंस ली गई है जिनको हम इमेजिनरी लाइंस बोलेंगे, जिस डायरेक्टली उस नंबर से, सी यू माइट बी एबल टू सी हियर लिटिल नंबर्स, ओके। तो अर्थ को इस तरह से थोड़ा डिवाइड किया गया है नंबर्स के साथ, सो दैट इजीली हम वो नंबर को, अगर नंबर रेफर कर पाए तो इजीली हम लोकेशन ढूंढ पाए कि कहाँ पर इंडिया है। अंडरस्टूड? You will notice that the needle is fixed through the globe in the tilted manner. It is called axis. 2 points of the globe through which the needle passes are called poles. See, axis क्या है? ये जो लाइन ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्ट हुआ है, right? So this is North Pole, this is North Pole, this is South Pole. Understood? And this is axis जो इसको कनेक्ट करता है। Understood? And then the globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. तो जैसे अर्थ मूव होता है, यहाँ पर रोटेशन है, so this globe can also move from west to east side, okay? Then, but remember there is a major difference. The real earth has no such needle. See, ये सिर्फ एक स्टडी करने को बनाया है नीडल, ये सिर्फ ये ग्लोब में नीडल फिट किया है so that अर्थ मूव करे और अर्थ को हम स्टडी कर पाए। अदरवाइज रियल में अर्थ के बीच में कोई भी नीडल नहीं है। अंडरस्टूड? देन इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस which is an imaginary line. Do you remember in first lesson we studied that all planets move around its axis only? Yes or no? सारे जो planets हैं वो axis पर ही move होते हैं। Yes, this one, see, if you see this, all these lines, ये axis है। Understood? That is धरती ऐसे तो move होगी, लेकिन ये लाइंस पर मूव होगी सन की सराउंडिंग में। We did with revolution and rotation, right? Okay, so that thing, एक्सिस के ऊपर ही अर्थ घूमते हुए घूमती है। Understood? Then, so clear what is axis, right? Then, another imaginary line running on the globe divide it into two equal parts. This is known as equator. Can you see this diagram? In this, see this middle line. ये भी imaginary line ही है, nothing else. And 0 degree. मतलब पूरी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है ये लाइन, जिसको इक्वेटर नाम दिया गया है। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन ओनली, ऐसी कोई लाइन धरती पर है नहीं, बट अर्थ को स्टडी करने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस और ये इमेजिनरी डिग्रीज बनाई गई है। ओके, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। ये है नॉर्दर्न हाफ, दिस मच पोर्शन इज नॉर्थ पोर्शन। ओके, यहाँ से 0 से लेकर ऊपर तक, तो इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। एंड डाउनवर्ड्स इट इज साउथ पोल, तो 0 डिग्री से लेकर नीचे तक इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। अंडरस्टूड? देन दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों इक्वल हाफ्स हैं क्योंकि इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. Equator क्या है? Equator बहुत important imaginary line है क्योंकि यहाँ से हम डिवाइड करेंगे अर्थ को, तो अगर हमें अर्थ को स्टडी करना शुरू करें तो we can go on with
चलिए लेट अस क्लियर फर्स्ट व्हाट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अच्छे से स्टडी करके फिर हम साउदर्न हेमिस्फीयर स्टडी करें। सो दैट मेक्स टू स्टडी अबाउट अर्थ वेरी इजी। अंडरस्टूड? All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. You can see this very first picture on page number 11. See, ये जो डॉट डॉट्स वाली लाइन है वो सेंटर ऑफ अर्थ है। नाउ अर्थ मूव हो रही है, इसके लिए हमें सिर्फ नॉर्थ पोल ही दिखा रहे हैं। अंडरस्टूड? इक्वेटर से लेकर नॉर्थ तक, इक्वेटर से लेकर नॉर्थ तक वी हैव 1 2 3 एंड 4 इमेजिनरी लैटिट्यूड। ओके, दैट इज जो इस तरह से लाइन है, जो इस तरह से लाइन है वो हमें लैटिट्यूड शो करता है। ओके, एंड विच इज फ्रॉम अप टू डाउन दैट इज लॉन्गिट्यूड। अंडरस्टूड? ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड शो करता है। ओके, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, it is measured 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Okay, that is हर जो ये latitude आपको दिखता है, okay, वो 90 डिग्री के डिफरेंस पर बनाया गया है according to round of the earth. Understood? Thus 90 degree north latitude mark the north pole. See, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर नॉर्थ पोल को काउंट करें सेंटर से लेकर, दिस विल मेक 90 डिग्री एंगल। अंडरस्टूड? नॉर्थ पोल से लेकर, हियर इट इज, नॉर्थ पोल से लेकर सेंटर तक, दिस विल शो यू राइट एंगल। अंडरस्टूड? देन एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो वही चीज अगर हम नीचे देखें तो दिस 90 डिग्री विल शो यू साउथ पोल। अंडरस्टूड? देन एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जितनी भी पैरेलल लाइंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगी उनको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। हाउ मेनी पैरेलल लाइंस विल, एज मेनी पैरेलल लाइंस आर देयर इन नॉर्थ hemisphere, it is called as north latitude, and as many lines are there in south hemisphere, it will be known as south latitude. Understood? So it is written that only. As such, all parallels north of equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitude. The values of each latitude is therefore followed either the word north or south. See, हर एक वैल्यू, see I have written, अब यहाँ तो 0 डिग्री है, it is in center, right? अब अगर I am going up, here n is written because I am counting towards north side. If I am going down from equator, here it will be written south, as I am talking about south side. Understood? Okay, for example, both Chandrapur in Maharashtra in India and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located at the 20 degree latitude. Okay, but the former is 20 degree north of equator and later is 20 degree south of equator. See, India जो है, इंडिया में से ये जो इक्वेटर है ना, okay, if I talk about India, if you see globe carefully, तो India is, most of the countries comes in northern hemisphere, okay, but Brazil जो है, अगर आप मैप देखो तो ब्राज़ील जो है वो अमेरिका से नीचे है, साउथ साइड में है। ओके, तो उनका डिफरेंस क्या है? सेलेक्ट सपोज दिस इज इक्वेटर। इंडिया का जो महाराष्ट्र का एरिया है
वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, तो साउथ साइड में ब्राज़ील का जो एरिया है वो 20 डिग्री साउथ में है. डिफरेंस इज 20 डिग्री ओनली, बट कंप्लीटली मीनिंग चेंज होता है व्हेन वी राइट नॉर्थ एंड साउथ. अंडरस्टूड? ओके. देन we therefore say that Chandrapur is situated in 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated into 20 degree south latitude. We see figure 2.2 that as we move away from equator, the size of parallel latitude decreases. See this picture clearly. इक्वेटर से हम जैसे जैसे धरती के ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सर्कल बड़ा है, राइट. अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सर्कल छोटा होता जाएगा, एंड एज सर्कल विल डिक्लाइन, ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस जो है, दैट इज लैटिट्यूड जो है, वो भी उनका साइज भी डिक्लाइन होता जाएगा, राइट. ओके. नाउ important parallels of latitude. Okay, I'll just stop here only. Please complete this. Okay, I will finish this because on page number 12 there will be another topic. Okay, important parallels of latitude. Beside the equator 0 degree and north pole 90 degree north, south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude. See, हमने इस डायग्राम में क्या देखा, दैट इज सेंटर से 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल रखा गया है एंड 90 डिग्री पर साउथ पोल. बट उसके अलावा अर्थ पर 4 और पैरेलल लैटिट्यूड्स बनाए गए हैं. कौन से? 1, 2, 3 एंड 4. अंडरस्टूड? 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ. इतनी जो स्पेस है इसको टॉरिड जोन कहा गया है. टॉरिड जोन में जो कंट्रीज आती हैं दे फेस मोर टेम्परेचर. अंडरस्टूड? टॉरिड जोन में, क्योंकि से लाइक सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सन, अगर यहाँ पे सन है, ओके, तो सन की डायरेक्ट रेज पहले यहाँ तक होगी, राइट. उसके बाद सन की रेज जितनी ज़्यादा स्लांटिंग जाएंगी उतना ही ज़्यादा वो टाइम लेगी धरती के उस कॉर्नर पे पहुंचने के लिए. अंडरस्टूड? इधर भी जितना ज़्यादा स्लांटिंग जाएगा उतना ज़्यादा टाइम लेगी सनरेज धरती तक पहुंचने में. ऑलरेडी वी स्टडीड अर्थ तक सनरेज जो पहुंचती है इट टेक्स 8 minutes. Understood? Now just imagine if from this इतना portion that is 23 degree north to 0 degree and 0 degree से लेकर 23.5 south, इतना portion if it takes 8 minutes to reach sunlight till here, so just imagine slanting rays जब धरती के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे. अंडरस्टूड? सो टेम्परेचर जो है वो टॉरिड जोन में ज़्यादा पाया गया है. फिर उसके ऊपर और उसके साउथ पोल में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है एंड दिस कम्स कम्प्लीटली फ्रिजिड जोन, दैट इज आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल इन साउथ पोल. फ्रिजिड जोन, यहाँ पर कम्प्लीटली ग्लेशियर होगा वी मस्ट से, क्योंकि सनरेज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रीच हियर. अंडरस्टूड? सो अर्थ को उस तरह से भी डिवाइड किया गया है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर जा रहे हैं, दैट इज नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ इन साउदर्न हेमिस्फीयर. Now Arctic circle in north side it is at 66.5 degree north, and the same here Antarctic circle is also at 66.5 degree south. Understood?
that is important 4 lines, parallel lines for your study of earth. Okay, now remaining we will continue in our next video. By this, please understand this video's explanation very carefully. It's quite interesting, बहुत interesting knowledge है अर्थ के बारे में. Okay everyone, thank you.